پاکستان اور ترکیہ کا تجارتی حجم کو $1 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے پر اتفاق۔ مصنوعات کی درآمد میں کمی کے لیے 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جسے ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ ترک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر صدر رجب طیب ایردوان اور ترکیہ کے عوام کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان ترکیہ بزنس کونسل سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترک کاروباری شخصیات سے استنبول میں ملاقاتیں، پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کرنے والوں میں اربراہ گروپ کے صدر، DEI کے کمپنی کے صدر اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کے وفود شامل۔ ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کا پاکستان کو 15 کروڑ یورو قرض دینے کا اعلان۔ صدر ECO کی استنبول میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات۔ رقم پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی اور تیل کی درآمد پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاونت پر ECO کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں پر تشدد اور افسران سے گالم گلوچ کے واقعات قابل مذمت ہیں۔ صحافیوں پر تشدد پاگل پن کی نشانیاں اور مسترد ہونے پر مایوسی کا اظہار ہے۔ افواج کے خلاف مذموم مہم سے عمران خان کی اصلیت سامنے آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ عوام نے PTI کے لانگ مارچ کا بائیکاٹ کر دیا۔ PTI پورے پاکستان سے صرف چند ہزار لوگ جمع کر سکی۔ اگر تحریک انصاف نے دھرنے کا فیصلہ کیا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی PTV سے خصوصی گفتگو۔ آزادی مارچ کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے ریاست کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خبر کی معذرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ پاکستان ٹیلی ویژن 58 برس کا ہو گیا۔ قومی چینل گزشتہ 6 دہائیوں سے ملکی ثقافت کا اعادار۔ PTV روایتوں کا امین، قومی امنگوں کا ترجمہ اور وطن عزیز کے طول و عرض پہ بسنے والے ہر گھر کا رکن۔ PTV کے تمام سینٹرز میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ PTV افسران اور ملازمین کی شرکت، ملک کی خوشحالی اور PTV کی ترقی کے لیے دعا۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر، ہمارا رہبر سب سے بہتر۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ تاریخی برادرانہ رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ سرمایہ کاری اور معاشی استحکام ہمارے بہترین تعلقات کی عکاسی کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے موجودہ حجم کو $1 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے، بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔
استنبول میں ترکیہ پاکستان بزنس کونسل کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مثالی دوستی ہے. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے استعداد سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے ترک سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ انہیں پاکستان میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وزیراعظم نے ترک سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. اس سلسلے میں جلد اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. We have signed a memorandum of agreement to enhance our trade volume from a very small amount, paltry amount of $1.5 billion to $5 billion in the next 3 years. So let's resolve and let's commit today that we will do everything to achieve this target in 3 years, rather double it in 3 years. وزیراعظم نے کہا کہ پیٹرولیم کی مہنگی مصنوعات کی درآمد میں کمی لانے کی غرض سے حکومت نے ملک میں 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ترکیہ سمیت دوسرے دوست ملکوں کے تعاون سے منصوبے کو کامیاب بنائیں گے. Today's my main message to all of you is that we have a plan of 10,000 megawatts of solar projects we have devised for investments in Pakistan. You will invest, get very nice profits, and we will benefit getting energy from the sun. Please come. I am going to arrange complete discussion over there, and we will only open the doors of the rooms once we have come to a firm and concrete understanding of everything. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دوسرے عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں. ترکیہ میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانی نقصان پر ترک حکومت اور عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. The terrorists have no religion. They are not human beings, and they belong to no one's land. The entire peace-loving community should act together against them. Turkey has been victim of terrorist attacks like Pakistan, and we are very happy to note that Turkish strength to fight this menace cannot be taken lightly. So we share your grief, your pain, as much as Pakistan suffered for long years. We believe in peaceful means and peaceful instruments to promote progress and prosperity, and that has to be the world order. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب میں متاثرین کے لیے امداد پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کے عوام کے شکر گزار ہیں. ترکیہ نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کی مدد کی ہے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو 150 ملین یورو کا قرض دے گا. یہ مالیاتی پیکج سیلاب زدگان کی امداد اور تیل کی درآمد پر خرچ ہوگا. استنبول میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر مسٹر یالچن یوکسل نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی اور اس دوران یہ معاہدہ طے پایا. تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس. استنبول اعلیٰ سطح ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ECO بینک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات قابل ستائش ہیں. ایسے وقت میں جب پاکستان مالی اور ماحولیاتی چیلنجز سے نبرد آزما ہے، یہ امداد نہایت اہم ہے. مالیاتی پیکج سیلاب سے بچاؤ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایندھن کی درآمد کے لیے مالی مدد فراہم کرے گا. This time, your support is also very valuable. Investment in agriculture, in industry, and we have supplementary and complementary devices. For example, if Pakistan, let's say, produces item A, and those items in Turkey and Iran are produced at high cost, we will export that to Turkey and Iran, and then what Turkey produces at a cheaper cost will be imported from Turkey to Pakistan and to Iran, and what Iran produces. So this has to be a three-way economic cooperation model. Sure. And this is how we can promote our economies, our workforce, and expand our portfolio. وزیر اعظم شہباز شریف نے رکن ممالک کے ترقیاتی کاموں کو پورا کرنے میں بینک کے اہم کردار کو سراہا. I'm very happy to hear from you that now you are including Central Asian countries as well. I think this has the real potential. We should be aiming at, and we should tap this potential for these countries and
hundreds of millions of people living in this part of the world. And I think there is great potential of railway connectivity from Istanbul to all the way to Pakistan. And that requires, of course, some initial investments. And if it is undertaken, it will have huge economic dividends. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के हुक्काम को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी सैयद तारिक फातमी और फाहद हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर ECO बैंक के सदर ने मुआहदे की कापी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्तांबुल से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया का ये 2 रोज़ा दौरा था और इंतहाई कामयाब दौरा। इसमें हम PNS खैबर की बात करें, उसका इफ्तिताह किया गया। साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती हजम को 1 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक ले जाने के हवाले से भी इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान में क्लीन ग्रीन एनर्जी के हवाले से कैपिटलाइजेशन और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब भी किया है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। ये मनाजिर हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिपार्चर के। अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म तुर्किया में 2 रोज़ा उनका दौरा था। इंतहाई कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना हो रहे हैं। आला हुक्काम से गाहे बगाहे फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा तुर्की का। और अगर कल की हम बात करें तो इस्तांबुल शिपयार्ड पर तीसरे PNS खैबर की मुश्तरका इफ्तिताह भी किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। उसके बाद वज़ीर आज़म की कुछ अहम मुलाकातें भी हुई, मुश्तरका प्रेस टॉक भी हुई सदर रजब एर्दोगान के साथ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर इस अज़म का इजहार किया कि दोनों ब्रदर ममालिक अपने करीबी ताल्लुकात को हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे, चाहे वो कोई भी मामला हो। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि दुनिया आजकल जिन तनाज़ात से गुजर रही है, चाहे वो तवानाई का मामला हो, चाहे वो फूड क्राइसिस हो या फिर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हों, दोनों ममालिक को एक दूसरे की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और इस जो कल का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस अज़म का इजहार किया गया कि आने वाली मुश्किलात में भी दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जिस तरह से माजी में जुड़े रहे हैं आइंदा भी जुड़े रहेंगे और इस कोऑपरेशन को आगे से आगे लेकर जाएंगे। स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के तुर्की के साथ वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ये दौरा इसकी भरपूर अक्कासी भी करता है। इस वक्त आप वज़ीर आज़म को देख सकते हैं, वज़ीर आज़म हाथ हिलाकर जो है वो अपनी मुकम्मल कर चुके हैं दौरे को और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले की ये मनाजिर हैं जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। तुर्किया बिजनेस काउंसिल से खिताब भी किया वज़ीर आज़म ने, सरमायाकारों को दावत भी दी कि वह पाकिस्तान में आएँ और जो भी उनके मसाइल हैं या जो भी उनको मुश्किलात यहाँ पर दरपेश हैं उसका भरपूर तरीके से अजाला किया जाएगा और उनको भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्किया के आला हुक्काम ने सी ऑफ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्किया में इस्तांबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म को उन्होंने अलविदा किया एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट से आप ये मनाज़िर देख सकते हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने तैयारे में सवार हो चुके हैं और ये तैयारा अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर मौजूद थे और उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के सदर से मुलाकात की। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्की की तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करने वाली कारोबारी शख्सियात ने मुलाकातें की। अलबराक ग्रुप के सदर अहमद अलबराक ने अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात की और पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तवानाई के शोबे से DEI के कंपनी के सदर नील उल पाक और CEO मोहम्मद एस उल पाक ने भी वफ़द के हमरा मुलाकात की। वफ़द ने पाकिस्तान की तवानाई से मुतालिक ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया और शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तांबुल ज़ोरलो होल्डिंग के CEO इब्राहिम सिनान इक और ज़ोरलो एनर्जी के CEO
एवरिक एविस्ट ने भी मुलाकात की। बातचीत में क्लीन एनर्जी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। कंपनी पहले से पाकिस्तान के हवा और शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी कर रही है। और यहाँ आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ तिजारती हजम को 3 साल में $5 अरब तक बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर से मुलाकात में तिजारती माहदे के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब में तुर्की की इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ उसकी कुर्बानियों की तारीफ की। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की नागुज़ीर जंग पर रोशनी डाली। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद कारोबारी और तिजारती पहलुओं की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की की ताजिर बरादरी को पाकिस्तानी हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल हिमायत के बारे में कायल किया और तिजारती सफारतकारी के नए दौर का आगाज़ करने के अज़्म का अयादा किया। और नाज़रीन, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव कहते हैं कि पाकिस्तानी चावल की अज़रबैजान दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट का फैसला किया है। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ होने वाली 2 मुलाकातों में बातचीत का नतीजा है। बाकू में वस्ती राहदारी के साथ जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर मुनक्किदा आलमी सेमिनार से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा कि जब हमारे बरादर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो हमें किसी और जगह से क्यों मंगवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मेन गवादर बंदरगाह खित्ते को जोड़ने का बहुत बड़ा मौका फराहम करती है। इससे खित्ते को बाहम मिलाने से तिजारत के नए इम्कानात पैदा होंगे। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को भाई और करीबी दोस्त करार दिया। We discussed also with Prime Minister how to intensify the economic and trade cooperation, and the decision which you referred to, the special regulations for rice from Pakistan, is a reflection of that. यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। पीटीवी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके अंदर, और आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। इतने सालों से इतनी कामयाबी के साथ आप तमाम प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। हम तो बचपन से मतलब पीटीवी ही देखते रहे हैं। ये प्राइवेट टीवी चैनल्स तो बाद में आए हैं, और उस ज़माने के जो प्रोग्राम्स हैं, जो ड्रामे हैं, वो आज भी बेहद मकबूल हैं। और मैं तो आज भी इसको यूट्यूब वगैरह पे दोबारा पुराने ड्रामे देखते हैं। हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं। तो आपको जी ऐसे ही आगे भी काम करते रहें। और पीटीवी माशाल्लाह उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जहाँ दूसरे चैनल्स की आउटरीच नहीं भी है। तो पीटीवी एक ऐसा ज़रिया है कि हर किसी को इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब चीज़ें पीटीवी के थ्रू मिलती हैं। तो आपको बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा तुर्किया का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वतन वापसी हो रही है उनकी, और ये दौरा किस कदर कामयाब रहा, कितनी अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर उस वक्त में जब हम जिस तरह पहले भी हमने बात की कि दुनिया मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार है और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है दुनिया को, तो उस सारे तनाजुर में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल रहा है, उसी पर बातचीत करने के लिए बड़ी ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की का दौरा किया, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को, ख़ास तौर पे जो मौशी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है उस तनाजुर में अगर हम बात करें तो? तुर्की जो है जी हमारा सदियों से दोस्त है, ट्रस्टवर्दी फ्रेंडशिप है हमारी, और इस सारे सिनेरियो में
जब हम अगर एक हाथ की उंगलियों पे 5 बड़े नाम पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उसमें रखें तो उसमें बिला शरकत गैर मैं ज़ाती तौर पे टर्की को पहला नंबर असाइन करूंगा। उसकी वजह ये नहीं है कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ना सिर्फ ये बल्कि हमारे चैलेंजेस एक जैसे हैं, जो हमारी सिचुएशंस एक जैसी हैं, हमें जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के सामने है वो एक जैसी है, जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिचुएशंस आती रही वो हम एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं, जो हमारी करेंसी पे प्रेशर्स आए हैं वो एक जैसे हैं। ये वो सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पर ना सिर्फ ये कि हम लोग एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, हम ख्याल भी हैं और हम हाल भी हैं। इसी दौरे में जब मैं देखता हूँ कि ECO और SCO के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। मैं ये समझता हूँ कि जो टर्की के साथ ये ताल्लुकात हैं इन्हें हमें मज़ीद इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। जिस तरह टर्की का एक प्रोजेक्ट है जी, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं जहाँ पे टर्किश प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो सकती है। उर्दू की एक कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है जी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेमनीज को कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम शॉपिंग मॉल्स और डिस्प्ले सेंटर टर्की में खोलें और टर्किश मसनूआत को जो कि यकीनन यूरोपीय मेयार की हैं उनको पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल्स में अपनी शॉप्स में उन्हें एक्सपोजर दें, उनको इंकरेज करें ताकि जो बायलैटरल हमारा ट्रेड है वो मजबूत हो सके। साथ ही साथ अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि PIA ने जो इन लोगों से मामला सेटल हुआ है कि अपनी इस्तांबुल की फ्लाइट जो है वो PIA शुरू कर सके। कोड शेयरिंग का इनके साथ मामला पहले चल रहा था। तो टर्किश एयरलाइंस में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जो सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स हैं, टर्किश एयरलाइन अगर यहाँ पे स्टॉप ओवर करके सेंट्रल एशिया जाती है दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फेवर फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी और उन्हें एक एफिशिएंट सोल्यूशन मिल सकेगा टर्किश एयरलाइन को भी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हमारा इनसे जज्बाती मजहबी लगाव है उसको हमें सीखने का करने का। प्रोफेशनल में मुख्तलिफ तिजारती मामलों में टर्की हमसे बहुत आगे है, तो हमसे कॉमन स्टार्टअप्स अगर हम शुरू कर सकें टर्की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यकीनन यहाँ पे पाक के स्कूल का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, जो कि अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आएँ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो स्टूडेंट जाती जो यूनिवर्सिटी की ख्वाहिशगार है जाने की। हम देखते हैं कि 18 लाख मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इस सिलसिले में किर्गिस्तान जैसे है वहाँ पे ओपनिंग्स है पाकिस्तानियों के लिए। तो जो इंट्रा रीजनल है या पाकिस्तान ईरान टर्की का जो एक हिस्टोरिकल जैसे आपने कहा कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तुर्की से सीख सकता है। एक ऐसा शोबा है चूँकि तुर्की को एडवांटेज हासिल है, वो एशिया और यूरोप के संगम पर मौजूद है, तो सयाहत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तुर्की में। पाकिस्तान में अगर हम सियाहत की बात करें तो कितना हमारे पास मार्जिन मौजूद है, और ख़ास तौर पर हम जो विजिटर्स हैं पाकिस्तान में आने के लिए टूरिज़म की सपोर्ट के लिए, जैसे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी स्क्रीन टूरिज़म की भी बात की थी, तो तुर्की से हम कितना इस्तेफादा कर सकते हैं? इस हवाले से हमारी तिजारत को कितना फ़ायदा होगा? जी, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस सिलसिले में जो टर्किश ड्रामे हैं उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। जो टर्की के साबिक सदर थे उनका कहना ये था कि टर्किश ड्रामे शुरू करने से मुख्तलिफ ज़बानों में दुनिया के 21 ममालिक में सब टाइटल्स के साथ जो अर्तुगरुल उस्मान और मुख्तलिफ टर्किश के ममनू मुख्तलिफ ड्रामे जो दिखाए जाते हैं उससे बासूरत का जो टूरिज़म है टर्की का उस 700 गुना इंक्रीज कर चुका है। ये चीज़ इसमें सीखने के लिए हमारे लिए भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत क्वालिटी के ड्रामे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उन मार्केट्स को जहां पर हम इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं लाजमी से डब करें। इसे PTV का यकीनन एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन जबानों में डब करके उन मार्केट्स में इन्हें प्रमोट किया जाए। फ्रेंच लैंग्वेज में, टर्की में, टर्किश में, अरबिक लैंग्वेज में पाकिस्तानी ड्रामों को सीजन्स जो है मुख्तलिफ उन्हें प्रमोट किया जाए। जिस तरह पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे पॉपुलर है इस वक्त, पाकिस्तान की हर दूसरी खातून इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि वो अर्तुगरुल और उस्मान की जो
वो जो उनके जो कासल से किले थे, जो उनका दरवेश कबायली निज़ाम था, उसे जाके विजिट कर सके। इसी तरह हमारा बड़ा रिच कल्चर है, इसमें हमारा कल्चर यकीनन अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अहलियत रखता है टूरिज्म के हवाले से। इसमें यकीनन पीटीवी से, मैं यकीनन वज़ारत इत्तलात और नशरियात से, वज़ारत विरसा जो हमारा देखता है कि अपने ड्रामों को हम लोग डब करें और इसे बैनुल अक़वामी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर लेकर चलें। इससे यकीनन हमारे बायलैटरल टूरिज्म में भी इजाफा होगा और ऑफ कोर्स ये हमारा एम्बेसडर होगा हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तौसीफ साहब, एक बड़ी अहम बात जिस पे अभी रिजवान ने भी आपसे सवाल किया, मैं भी इससे जानना चाहूंगी। तिजारती मामलात की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की अगर हम देखें तो यूरोपियन कस्टम का जो है वो कमीशन का मेंबर भी है। मतलब ये हुआ कि तुर्की जो है वो एक रसदगाह है जहाँ से सारा सामान यूरोपीय ममालिक तक सप्लाई होगा। तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह से तुर्की की इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, अपनी तिजारत को प्रमोट कर सकता है? इसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि हमें बहुत कुछ टर्की से सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि हमें कॉमन स्टार्टअप शुरू करने चाहिए उनके साथ, तो व्हाट वी कैन ऑफर आपके चैनल से कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हम लोगों का इदारे हैं, हम लोग 100 टर्किश स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर की ऑफर करते हैं कि 100 उनके स्टूडेंट्स और 100 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिल के आपस में कॉमन कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्हें हम लोग भी फंड करेंगे वेंचर कैपिटल से, और इस चीज़ को लेके हमें आगे चलना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो हमारा है ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत कि जहाँ पर यहाँ पे टर्की के ट्रेड सेंटर और कॉमन स्टार्टअप्स वो शुरू किए जाए। इसके इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे इत्तफाक हुआ जी वॉक इन इस्तांबुल में, इस्तांबुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में बगैर किसी अपॉइंटमेंट के वहाँ पे गया हूँ। विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मेरे गिफ्ट्स, मेरे सोवेनियर्स, अपना प्रोजेक्ट लिटरेचर, फोटोग्राफ, जो प्लेजेंट्रीज थी वो शेयर करके, Q&A करके, वी वर आउट विद कंप्लीट प्लेजेंट एक्सपीरियंस। 15 मिनट में वी वर आउट ऑफ द मीटिंग। ये जो एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे लगाते हैं, वो उन्होंने 15 मिनट में रैप अप करके एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दे दिया। दिस इज समथिंग टू लर्न कि हम लोग कम से कम वक्त में बेहतरीन एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं। हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है प्रोडक्ट डिलीवरी का, QCs का, किस तरह हम लोग एक चीज़ को लेके उसे प्रमोट करें, दिस इज समथिंग वी जॉइंटली नीड टू लर्न विद टर्की। बिल्कुल सही। तौसीफ ज़मान साहब, इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्शन लेवल और हमारी इंडस्ट्री फले फूले और यहाँ पर किसी किस्म की रुकावटें ना हों, और उसके लिए एनर्जी की फ्राहमी बहुत बड़ा एक इशू है, चैलेंज रहा है पाकिस्तान के लिए, और अब तो खैर पूरी दुनिया के लिए है। और जब से माहौलियाती कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हुआ है तो क्लीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इसके साथ साथ अगर हम पानी की पैदा होने वाली एनर्जी की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस शोबे में भी इन्वेस्टमेंट के लिए तुर्किया के बिजनेसमैन से, वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनसे भी गुफ्तगू की है। ये कितना इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए? अर्ज ये करता चलूँ कि हमसे माजी में कुछ गलतियाँ हुई जिसमें हम रेंटल पावर में गए और हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले गए, जिसकी हमें शदीद एज ए कौम हमें सर्कुलर डेफिसिट में जाना पड़ा, और पूरी कौम अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉस्ट करते हुए हम वो कर्जे जो कि बिजली पैदा भी नहीं होती, हमें उनकी पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है। ये जो हमने ब्लंडर किया, इसका जो आने वाली नस्लों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। इसका जो सोल्यूशन था या जो अब सोल्यूशन है इसका, वो हमें इमीडिएटली हमें हाइड्रो की तरफ जाना चाहिए। अभी किर्गिस्तान में हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो केटू से दरिया सन निकलता है, उन्होंने क्या किया, दरिया को बिल्कुल समेटते हुए, छोटा करते हुए किर्गिस्तान में उसे पाइप में ले जाते हैं, उसके आगे कंटेनर लगाते हैं, कंटेनर में टरबाइन होता है, वो बिजली को चला जाता है हाइड्रो स्टेशन को, और दूसरे पाइप से पानी दोबारा दरिया में आ जाता है। व्हाट एन एफिशिएंट सोल्यूशन। 5 मेगावाट के छोटे से प्रोजेक्ट है, ये हम बहुत तेजी से रन ऑफ द रिवर पे लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई लंबे चौड़े डैम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कोई इशू नहीं है।
कोई हमें रीलोकेशन पॉपुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। इस्तेफादा कर सकते हैं और कम वक्त में अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़बान साहब, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से न्यूज़ शो @6 में बात कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया के हवाले से पेशरफ्त हुई है। ख़ासतौर पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तिजारती हजम की बात करें या फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दो तरफा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो जो पेशरफ्त हुई उस पर आप अपना ओपिनियन दे रहे थे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। इस्तंबुल के शहरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने दरमियान पाकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आम शहरियों से गपशप भी की और उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए और इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। इस्तंबुल के शहरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क ज़बान में गुफ्तगू पर हैरान रह गए। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खैर सगाली के जवाबी कलमात कहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेस्टोरेंट के अमले के साथ भी तस्वीर बनवाई। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत रैकेडिक मंसूबे पर एपिक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में रैकेडिक मंसूबे की तकमील के लिए तयशुदा इक़दामात पर अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्तेफाक किए गए इंतजामात के तहत बाकी इक़दामात की जल्द तकमील की अहमियत को उजागर करते हुए तमाम मुतल्लिका अफराद पर जोर दिया कि 15 दिसंबर 2022 तक की डेडलाइन से कबल तस्फीये के बाद मंसूबे की बहाली को यकीनी बनाया जाए। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की रोशनी में ज़रूरी कानून साजी की जाएगी जिसमें मुतल्लिका सूबों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतों ने मुकर्ररा तारीख तमाम लवाज़मात को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। इजलास को बताया गया कि तयशुदा इंतजामात की कामयाब तकमील से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। रैकेडिक मंसूबे की बहाली से मईशत को तक़वियत और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवाम ने PTI के लॉन्ग मार्च का बाइकआउट कर दिया है। PTI पूरे पाकिस्तान से सिर्फ चंद हजार लोग जमा कर सकी। वज़ीर दाखिला PTV से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने धरने का फैसला किया तो वहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे। इंसानों का जो समुंदर इन्होंने इकट्ठा यहाँ पे करना था उसका टोटल फिगर जो है मेरा ख्याल है कि 15-16 हज़ार 12-15 हज़ार के ऊपर आके जो है वो ख़त्म होगा। तो अब ये आप देख लें कि ये 12-15 हज़ार लोगों की हिफाजत के लिए जो है वो इस वक्त पंजाब पुलिस के को 8 से 10 हज़ार लोग जलसागाह के अतराफ़ में जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, FC और इस्लामाबाद पुलिस के लोग जो हैं वो कोई तकरीबन 16 हज़ार की तादाद में वो 2 शिफ्टों में जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये 15-16 हज़ार के इंसानों के समुंदर की हिफाजत के लिए वो तकरीबन 26 हज़ार जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग सुबह 8 बजे से जो है वो उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये अब कितना वक्त ज़ाया हो रहा है, कितना ख़र्च हो रहा है और खामखा किस हैजानी कैफियत में मुल्क को, लोगों को जो है वो मुब्तला किया गया है और इससे हासिल क्या होगा। ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि लोगों ने तो समझी हैं, लोगों की समझ में आ गई है, इसीलिए लोगों ने इनके लॉन्ग मार्च का भी बाइकआउट किया और अब जलसे का, आज की यहाँ पे गैदरिंग का भी बाइकआउट किया है। लेकिन ये जो 15-16 हज़ार लोग पूरे मुल्क से जो है जिनके ज़हनी तवाज़न जो है वो बिगड़ा हुआ है और वो हर कीमत पे जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को और मुल्क को जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो अल्लाह करे कि इनकी भी समझ में ये बात आज आ जाए। अगर इससे पहले नहीं आई तो आज ये समझ लें और मामलात को जो है सियासी और जमहूरी अंदाज से जो है वो आगे बढ़ाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सियासी अफरा तफरी से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा है। मानसहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने आइन और कानून की बालादस्ती और रियासत की हिफाजत के लिए एक तवील जंग लड़ी है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तरक्की के ट्रैक पर लगाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद और अफसरान से गालम गलोच के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद पागलपन की निशानी और मुस्तरद होने पर मायूसी का इजहार है। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम से इमरान खान की असलियत सामने आ रही है।
पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले रहनुमा आपे से बाहर। हंगू में पीटीआई रहनुमा को सहाफी का सवाल पसंद नहीं आया। गुस्से में सहाफी को फ्लाइंग किक दे मारी। सहाफी ने सिर्फ इतना पूछा था कि मार्च के शुरका की तादाद गाड़ियों से क्यों कम है। इतना काम नहीं रवान तो सब चोरा कर कुनान जी tada गाड़ी वगोरा तो कर कुनान वगोरा। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि मौसमियाती तब्दीली के मसले के हल के लिए अगर ठोस इकदामात नहीं किए गए तो उसकी तबाही से कोई भी बच नहीं सकेगा। आज पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, कल दुनिया के बाकी मुल्क इस तबाही का शिकार होंगे। कराची में चौथे अदब मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली को अदब मेले का उन्वान बनाना इस मसले को अवाम तक पहुँचाने और समझने में मददगार साबित होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि COP27 के हालिया इजलास में पाकिस्तान ने अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। उनका कहना है कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज पे पाकिस्तान का 1% से भी कम किरदार है, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त मौसमारी तब्दीली के लिए ग्राउंड जीरो बन चुका है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल हमारे लिए संगीन मसाइल पैदा कर रही है। पिछले दौरे हुकूमत में तोशाखाना के तहाइफ को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया और मौजूदा हुकूमत में तोशाखाना के तहाइफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारियों में आवेजा कर दिया गया। हम आज प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत आते हैं और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि उनको दिखाया जाए कि तोशाखाना के तहाइफ को किस तरह यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी साबका रिवायात को कायम रखते हुए शफाफियत और आला ज़रफ़ी की मिसाल कायम की है कि तोशाखाना के तहाइफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारियों में उनको डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो सऊदी वलीअहद की तरफ से तोहफ़ा दिया गया था, उसी तरह का एक तोहफ़ा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है और वो डिस्प्ले पे मौजूद है, जिसमें एक घड़ी है, पेन है, तस्बीह है, कफलिंग्स हैं और एक रिंग मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये तोहफ़ा यहाँ पे बाकायदा डिस्प्ले पे मौजूद है और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि जो गुजरते हुए लोग हैं वो उसको देख भी सकते हैं और इससे शफाफियत भी इंश्योर होती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो अमीर कतर की तरफ से एक बहुत महंगा ये क्लॉथ पीस जो है ये शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया था, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले पे मौजूद है। और आगे चलें तो मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहद उनकी तरफ से एक बहुत कीमती घड़ी, डायमंड स्टडेड घड़ी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई गई है। तो ये होती है शफाफियत, ये होती है ऑनेस्टी, ये होती है आला ज़रफ़ी कि आप अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए जो दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ दिए गए हैं उनको बाकायदा डिस्प्ले करते हैं खूबसूरत तरीके से। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से साबका दौरे हुकूमत में जो तोशाखाना के तहाइफ को बेचा गया, ये एक बदतरीन फेल था जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती और रूल्स के अंदर भी गुंजाइश नहीं है। रूल्स के अंदर गिफ्ट्स को रिटेन करने का जो है वो प्रोविजन मौजूद है कि आप उनको एक कीमत अदा करके घर ले जा सकते हैं, आप उनको बेच नहीं सकते। तो रियासत मदीना के दावेदार, खुलफा राशिदीन की मिसालें देने वाले आजकल रसीदें बनाते फिरते हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह फ़लाँ घड़ी बेची। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पे आंच आई और आज भी जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आएँ बाएँ शाएँ, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। ये बहुत अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने घड़ियाँ बेची, जिन्होंने ये तोशाखाना के तहाइफ जो हैं वो सारे बाज़ार बेचे, उनको जवाब देना होगा, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जनाब, प्रोग्राम में अब कुछ बात होगी पाकिस्तान टेलीविजन की 58वीं सालगिरह की। पांच दहाइयों से ज्यादा का सफर, पाकिस्तान टेलीविजन 58 बरस का हो गया। कौमी चैनल ने नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन रूशनास करवाए, हर दौर में कौम की तर्जुमानी की, रहनुमाई की। पाकिस्तान टेलीविजन फैमिली और पूरे पाकिस्तान को कौमी चैनल की सालगिरह मुबारक। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने PTV की 58वीं सालगिरह के मौके पर नाजरीन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर इत्तलात तुर्की के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने PTV की सालगिरह का केक काटा और उन्होंने तहनीयती पैगाम भी दिया। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को
58 सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद देती हूँ। और ये सालगिरह न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न की है बल्कि पाकिस्तान की है। और जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न ने पाकिस्तान को एक बेहतर माशरा, एक नैरेटिव बिल्डिंग जिस तरह रियासत पाकिस्तान की होनी चाहिए, जो उसमें अपनी काविशों से जनरेशनल जो कंट्रीब्यूशन की है, मैं उस पर भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। वो तमाम लोग जो 58 ईयर्स से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट, वो एक्टर्स, वो एक्ट्रेसेस, मौसीकार, जितने लोग भी जिस शक्ल में भी, प्रोड्यूसर्स हों, एंकर्स हों, उसके साथ साथ जितना टेक्निकल स्टाफ है, जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन सब को और पाकिस्तान टेलीविज़न की मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो अपना एक प्रोग्रामिंग का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए। जो एक ख़बर की दौड़ में या जो सनसनी खेज़ ख़बरों की दौड़ में जर्नलिज़म चला गया है, उससे गरेज़ करना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का फैक्ट चेक प्रोग्राम पीटीवी ने शुरू किया है, मैं उस पर भी मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक ट्रेडिशन रहा है, एक रवायत रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज देते हैं वो बड़ा मस्बत होता है। उसी को दोबारा से बहाल करें और आएँ आज इस दिन हम सब मिलकर ये अज़्म करें कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर माशरा बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टीवी सेट रखने वाला शायद ही कोई ऐसा घराना हो जिसके अफराद के जहनों में पीटीवी के खबरनामे की यादें नक्श न हो। 58 साल पहले शुरू होने वाले पीटीवी के सफर में शुबह खबर का किरदार इंतहाई अहम रहा। पीटीवी का चंद मिनट की ब्लैक एंड वाइट खबरों से 24 घंटे की एचडी नशरियात के जरिए पल पल की खबरों से अपने नाज़रीन को आगाह करने का सफर कैसे तय हुआ, ये बताएंगे अरसलान असद। 26 नवंबर 1964 पाकिस्तान में टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज। लाहौर के एक छोटे से कमरे से जब पाकिस्तान में पहली बार टीवी नशरियात शुरू हुई तो ये सिर्फ 3 घंटे तक महदूद थी, जिनमें रात 8:30 बजे चंद मिनट की ब्लैक एंड वाइट खबरें बराह रास्त नशर हुआ करती थीं। और पहली बार खबरें पढ़ने का एजाज भी तारिक अजीज मरहूम के नाम है। मेरे मेकअप मैन जो थे, उन्होंने जिंदगी का हर तजुर्बा मेरे ही चेहरे पर किया। इत्तेफाक था कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का पहला अनाउंसर था। पीटीवी के पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर मरहूम की क़यादत में इदारे की टीम इब्तदा में चंद अफराद पर मुश्तमिल थी और नशरियात मुल्क के सिर्फ 9% इलाके तक महदूद होने समेत मुल्क भर में सिर्फ चंद टीवी सेट्स पर ही देखी जा सकती थी। इन मुश्किलात के तहत जो हमारे अंदर सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में थी उस वक्त, वो यही थी कि एक जज्बा बहुत था और हम चाहते थे कि एक यानी यूं कहना चाहिए कि परफेक्शनिज्म का एक जज्बा था हमारे अंदर सब। 70 की दिहाई में पीटीवी पर रात 9 बजे खबरनामे के आगाज के साथ ही कई मर्द और खवातीन न्यूज एंकर्स ने अपनी खूबसूरत शख्सियत, मुनफरिद आवाज, धीमे लबो लहजे, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और शानदार अदायगी से पाकिस्तानी कौम के दिलों में ऐसा घर किया कि 58 साल गुजरने के बावजूद ये सब चेहरे आज भी हम सब के जहनों में तरोताज़ा हैं। 40 दिहाइयाँ होने को हैं खबरों के इस जहान में, लेकिन जो काम आपकी मोहब्बत हो, आपकी ख्वाहिश हो, वो काम नहीं रहता। बेहतरीन से बेहतरीन की ख्वाहिश आपको उड़ाए लिए फिरती है। आज की नस्ल है वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगी कि उस जमाने में ये कोई आज की तरह का डिजिटल जमाना नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी टेप्स हुआ करती थी। 72 की बात है। मैं इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब था कि मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। अब पीटीवी न्यूज के नाम से उर्दू खबरों और हालात हाजरा के लिए एक अलग चैनल बन चुका है, जिसकी एचडी नशरियात मुल्क भर में 90% आबादी तक कामयाबी से पहुंच रही हैं। पीटीवी न्यूज मुल्क का सबसे बड़ा और वाहिद टीवी चैनल है जिसकी नशरियात सिर्फ आम एंटीना के जरिए भी देखी जा सकती हैं। ये एजाज भी पीटीवी न्यूज को हासिल है कि कौमी जबान उर्दू समेत पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, गोजरी, शीना और बल्ती जैसी इलाकाई ज़बानों में भी खबरें नशर करता है। न्यूज़ एक बड़ा डिफ़िकल्ट शोबा है। इसमें हमारे नुमाइंदे दुनिया भर में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सब हमें खबरें भेजते रहते हैं। हम उन्हें जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसके बाद ऑन एयर करते हैं, क्योंकि पीटीवी न्यूज़ ने कभी किसी अपनी न्यूज़ की तरदीद नहीं दी। वो हमेशा सच जिम्मेदारी के साथ पेश करता है।
PTV न्यूज़ इस हवाले से भी मुल्क का वाहिद न्यूज़ चैनल है जो समात और कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद को भी मुल्क और दुनिया भर की खबरों से इशारों की ज़बान में आगाह रखे हुए है। सियासी उफक हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियां हों या सेहत, तालीम, सकाफत, मौसम की सूरत हाल हो या हालात हाजरा, PTV न्यूज़ रूम में काम करने वालों की नज़रें हर वक्त हर एक खबर पर होती हैं। PTV न्यूज़ का ये तुरा इम्तियाज़ है जिसने हमेशा सनसनीखेज़ी या हिजान खेज़ी से इज्तनाब करते हुए बग़ैर तस्दीक के जल्दबाजी में अफवाहों को ब्रेकिंग न्यूज़ का रूप नहीं दिया, बल्कि मुल्क और आलमी सतह पर रोनुमा होने वाली हर तब्दीली को खबर में ढालने से पहले इसकी 100% तस्दीक को लाजमी बनाया। PTV की ये स्क्रीन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे रोशन रहती हैं। ये हमारी मौसर इदारती पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज भी PTV न्यूज़ पर नशर होने वाली खबर को 100% मुसद्दक़ा तस्लीम किया जाता है। अस्तान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 26 नवंबर 1964 को लाहौर से नशरियात का आगाज़ करने वाला पाकिस्तान टेलीविज़न आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहा है। कौमी चैनल ने नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन को रोशनास करवाया, हर दौर में कौम की तर्जमानी की और रहनुमाई की। मज़ीद तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बसे हर घर का रुकन पाकिस्तान टेलीविजन 58 बरस का हो गया। PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन की 58वीं सालगिरह का केक PTV न्यूज मरकज इस्लामाबाद समेत PTV एकेडमी और PTV होम में भी काटा गया। मुख्तलिफ शोबों के डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, यूनियन के मरकजी ओहदेदारान और PTV के वर्कर्स ने खुसूसी शिरकत की। PTV की सालगिरह के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इतलात व नशरियात और PTV की चेयरपर्सन शायरा शाहिद ने PTV की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि PTV हम सबका फख्र है। आप सबको भी मुबारकबाद हमारी तरफ से, और इस दुआ के साथ कि ये फलता फूलता रहे और हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत जिस तरह सरकार की करता रहा है हमेशा और करता रहा। हमारे लिए एक बड़ी प्राइड का एलिमेंट है PTV, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। मैनेजिंग डायरेक्टर PTV सोहेल अली खान ने प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन अपने मेयार को बरकरार रखते हुए जिद्दत लेकर आ रहा है, जिसे मुआशरे में हमेशा से सराहा गया है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और उसके जो वसाइल और उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, और इन लोगों की एक्सपर्टीज से और इनकी मुआवनत से वो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है, और उनके जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो पैटर्न्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान टेलीविज़न ही को फॉलो किया। PTV के डायरेक्टर न्यूज मिर्जा राशिद बेग, डायरेक्टर करंट अफेयर्स ओन अब्बास शाही, डायरेक्टर इंजीनियरिंग आरिफ नूर और डायरेक्टर प्रोग्राम्स अकबर मलिक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने माशरती इक़दार के फ़रोग़, तहजीबी तरक्की और तालीम के फ़रोग़ में जो किरदार अदा किया वो सब पर अयां है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, रवां साल 10 अगस्त को पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ एक अहम शख्सियत से महरूम हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन की साबिक डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स रफ़त नज़ीर हमें दाग़े मुफारकत दे गईं। इनके साथ गुजरा वक्त PTV न्यूज़ के हर कारकुन के लिए यादगार है। तफसील इस रिपोर्ट में। तेज निगाह, दूरअंदेश ज़हन, जामे गुफ्तगू और इंतहा दर्जे का प्रोफेशनलिज्म, इन तमाम खूबियों को यकजा करें तो जो तस्वीर बनती है वो रफ़त नज़ीर की है। पाकिस्तान टेलीविजन के कराची मरकज से प्रोड्यूसर की हैसियत में करियर का आगाज करने वाली रफ़त नज़ीर ने इदारे में प्रोड्यूसर और एडिटर की हैसियत से भी फराइज अंजाम दिए, लेकिन उनकी पहचान बना रिपोर्टिंग का शोबा। सोबा खबर की अव्वलीन खातून रिपोर्टर्स में वो एक बड़ा नाम थी। सीनियर रिपोर्टर की हैसियत से रफ़त नज़ीर ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए रिपोर्टिंग की। ये मेरा पैशन था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, लेकिन टीवी में आने का नहीं सोचा था। यही सोचा था कि अखबार एक का ही सहाफ़ी होता है उस जमाने में, यही सबसे बड़ी बात होती थी। मैंने तो अपने शौक से ज्वाइन किया और इस शौक को लेके मैंने एक तवील जद्दोजहद, बहुत लंबा सफर, और जद्दोजहद अपने लिए की, अपनी साथी कोलीग्स के लिए की, उन बच्चियों के लिए की जो मेरे साथ चलती रही, और अपने इदारे के लिए की। रफ़त नज़ीर के लिए शोबा खबर से वाबस्तगी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उनका पैशन थी। उनके साथ ही उन्हें उनकी हद दर्जा साफ गोई और इंतजामी सूझबूझ की वजह से आज भी याद करते हैं। हमेशा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें जो है ना काम सिखाया। हमारे साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो वो बड़े अच्छे अंदाज में हमें वो उस क्राइसिस से निकालती और
ہمیں گائیڈ ہمیشہ انہوں نے کیا, ہمیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں سینئر ہوں اور یہ جونیئرز کے ساتھ. انہوں نے بالکل ایکول لیول پہ اچھی طریقے سے ہمارے ساتھ کام کیا اور ہمیں اچھا انہوں نے سکھایا. ایک نفیس خاتون تھی, کام میں پرفیکٹ تھیں اور بڑی نفاست سے وہ کام کرتی تھی, چاہے وہ آفس کا ہو چاہے گھر کا. وہ انہوں نے ہمیشہ نفاست کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا. میں ایز اے کنٹرولر ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. ہم ہمیشہ اس کو مس کرتے رہیں گے اور ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ بستی رہیں گی. شی واز دا بیسٹ پرسن ان دا نیوز روم, جنہوں نے ہمیں اپنا کلیگ نہیں سمجھا, جنہوں نے ہمیں اپنی فیملی سمجھا اور ہمیں ہر طرح سے سکھایا. ایک ایک چیز ہم ان سے پوچھتے تھے, ان سے گائیڈنس لیتے تھے. And she was the best lady in the media. رفعت نذیر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پی ٹی وی کی بیٹ رپورٹر کے طور پر کام کے دوران مختلف سربراہان مملکت کے ہمراہ فرائض سر انجام دیے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اپنی بیماری کے دنوں میں بھی انہوں نے اپنے فرائض منصبی تندہی سے انجام دیے. وہ کہتی تھیں کہ میرا کام ہی میری طاقت ہے. رفعت ایک بہت اچھی بیوی اور ماں بھی تھیں. انہوں نے اپنے گھر اور کام میں توازن رکھ کر ثابت کیا کہ ایک عورت ہر میدان میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے. گھر میں تو رفعت ایک ایسے جو ہے وہ پرندے کی طرح تھی جو ہر وقت چہکتا رہتا ہے. اس کی چہکار سے پورا گھر جو ہے وہ معمور ہوتا تھا. بچے بھی بالکل جو ہے وہ اسی طرح انجوائے کرتے تھے, باقی بھی. لیکن اس کے جانے کے بعد جیسے ایک سناٹا ہو گیا. وہ کبھی بھی سچ اور حق بات کہنے سے نہیں چوکتی تھی, لیکن کسی ساتھی کی, کسی کولیگ کی اگر کوئی دل آزاری ہوتی تھی تو فوراً اس کا مداوع بھی کرتی تھی. رفعت نے ہمیشہ ادارے کا اور ادارے کے جو باسز تھے ان کا اعتماد جیتا اور ہمیشہ وہ آگے سے آگے بڑھی اور آگے سے آگے گئی. رفعت ہم میں نہیں لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ جب لکھی جائے گی اس میں رفعت کا نام بہت بلندیوں پر ہوگا. رفعت نذیر آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ وار آغاز کل سے ہوگا. پہلے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی جو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان. آزاد کشمیر میں 31 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 27 نومبر بروز اتوار مظفر آباد ڈویژن سے شروع ہوگا جو کہ 3 اضلاع نیلم ویلی, جہلم ویلی اور مظفر آباد پر مشتمل ہے, جن کی 7 تحصیلوں کے ووٹرز کی تعداد 6,95,049 ہے. کل 2,716 امیدواران میدان میں ہیں. مظفر آباد ڈویژن میں 1,314 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے لیے عملے کی تعیناتی اور پولنگ میٹیریل کی ترسیل کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے. پولنگ سٹاف ڈپیوٹ ہو چکا ہے, میجسٹریٹ صاحبان کی ڈیوٹی لگ چکی ہے اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں جنہوں نے پولنگ سٹیشن کے اوپر اور کوئک ریئیکشن فورس کے طور کے اوپر اپنے فرائض انجام دینے ہیں ان کو بھی اپنی ڈیوٹیز کے اوپر معمور کر دیا گیا ہے. مظفر آباد ڈویژن میں انتخابی رنگ جم چکا ہے. ہر طرف جماعتی پرچموں, پوسٹرز اور بینرز کی بہار ہے. تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق انتخابی مہم پر گزشتہ رات 12 بجے سے پابندی لگ چکی ہے. بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ نظام اپنی اصل شکل میں رائج کیا جائے گا. عدیل احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مظفر آباد, آزاد کشمیر.